2 weeks back, we spoke about the fact that Jesus himself is our peace. 2 हफ्ते पहले हमने इस बात पर मनन किया था कि यीशु मसीह खुद हमारी शांति है. And prior to that, we spoke about how he is our hope. और उससे पहले हमने देखा था कि कैसे प्रभु यीशु हमारी आशा है हमारी. And today I'm going to talk about preserving the peace of mind that God has given us. और आज हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने जो शांति हमें दी है उसको हम कैसे अपने जीवन में संभाल के रख सकते हैं. What is amazing to know is that the Lord has given us his peace and his joy. और सबसे अद्भुत बात है इस बात को जानना कि प्रभु ने अपनी शांति और आनंद हमें दिया है. In John 14:27 he says, "Peace I leave with you, my peace I give unto you." और यूहन्ना 14:27 में वो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं. The same peace he had, he is given to us. जो शांति उसके पास थी वो ही शांति हमें दे दी. And this peace is oneness with God the Father. Irene is the word. In Greek, the word called irene, oneness with God. और ये जो शांति है ये आयरेने है जो यूनानी भाषा में जिसका मतलब है परमेश्वर के साथ एक हो जाना. Similarly, joy is something he has given us and he's given us his joy. और उसी तरह से आनंद भी है और परमेश्वर ने अपना आनंद हमें दिया है. In John chapter 15 verse 9, 10 and 11 he said, यूहन्ना 15वां अध्याय उसकी 9, 10, 11 में हम पढ़ते हैं, As the Father has loved me, so have I loved you. जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा. Remain in my love. मेरे प्रेम में बने रहो. If you obey my commandments, you will remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain in his love. यदि तुम मुझे मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं. And 11th verse he says, I've told you this, that my joy will be in you and your joy will be complete. और मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. Both these verses, John 14:27 and John 15:11, were spoken by Jesus in the last 1 week of his physical life on this earth before he was to be crucified. और ये दोनों आयतें जो है यूहन्ना 14:27 और यूहन्ना 15:9 से 11 जो हमने पढ़ा, ये दोनों आयतें प्रभु ने बोली जब वो क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले. He had given instructions to the apostles. He's talking to the 11 apostles. One had gone to betray him. The 11 apostles he's talking to. और प्रभु ने ये अपने जो 11 प्रेरित थे उनको दिया था क्योंकि 12 में से एक ने प्रभु को धोखा दिया था, वो दूर चला गया था. And is preparing them to preserving the peace and joy he has already given to his disciples. और परमेश्वर उनको तैयार कर रहा है जो शांति आनंद जो उनको पहले ही उसने दे दी है. I've told you these things, I've told you this, meaning whatever he taught them, they were expected to obey them. In that process, preserve the peace and joy of the Lord. और प्रभु ने उनको बता दिया था कि यही है और जो ये शांति और आनंद है और उनको बता दिया था कि इसको करने से तुम मेरी शांति आनंद तुम्हारे में बनी रहेगी. Today you and me have the peace of Christ because of the fact that he has cleansed our spirits of every sin and they are one with God. आज हमारे पास ये परमेश्वर की शांति है क्योंकि हम परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा कर दिया और हम परमेश्वर ने हमको एक कर दिया पिता के साथ. The amazing work of Christ on the cross was prophesied by prophet Isaiah in Isaiah chapter 53 verse 5. और यशायाह 53 उसकी 5वीं आयत में इसकी भविष्यवाणी शांति की जो थी प्रभु ने पहले ही कर दी थी. The punishment that brought us peace was upon him and by his wounds we are healed. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं. The 53rd chapter of Isaiah records the vision that Isaiah saw concerning the cross, Christ hanging on the cross. और ये 53वां अध्याय यशायाह का है, ये वो दर्शन है जो यशायाह को मिला था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे टंगा हुआ वो देखता है. That vision was given by God the Father to Isaiah before the actual cross took place. और ये यशायाह को परमेश्वर ने पहले ही दर्शन दिया था इससे पहले कि क्रूस का जो घटना थी वो होती. Today you and me are beneficiaries of what Christ did on the cross. आज आप और मैं उस चीज के उसका फायदा उठाने वाले लोग हैं जो प्रभु ने क्रूस पे हमारे लिए किया. He has taken away punishment and given us peace. परमेश्वर ने वो सजा अपने ऊपर ले ली और हमें शांति दे दी. And the word for peace in the Old Testament is shalom, which means wholeness, completeness. New Testament, irene, oneness. Both mean the same. और पुराने नियम में शालोम शब्द है जिसका मतलब है शांति यानी एकता, और नए नियम में है वो irene, वो भी completeness या एकता को दिखाता है. दोनों का मतलब एक ही है. So today we Christians only have to preserve the peace he has given us and have the same peace and joy
that Jesus had. What an amazing prospect that is. और ये आज हम जो मसीह लोग हैं, हमें उस शांति आनंद को अपने जीवन में बनाए रखना है, और वही शांति आनंद जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी। कितनी अद्भुत ये बात है। So today and next week, and maybe even the week after that, I'm going to speak on preserving peace, especially in the context of peace of mind. और अगले 2-3 हफ्तों में हम इन्हीं बातें मनन करेंगे, खासकर ये मन की शांति के बारे में। How often you find people of this world saying, I have no peace of mind. Even Christians say, I have no peace of mind. और बहुत से संसार के लोग और मसीह लोग भी इस बात को कहते हैं कि मेरे मन में कोई शांति नहीं है। Now actually we have been given peace. We must learn to preserve it. That's all. और हमारे को तो वास्तव में शांति दी गई है, हमें तो इस शांति को सिर्फ बना के रखना है। So I'm going to speak specifically this tonight and next week also on the peace of mind. Nothing. और भाई इस हफ्ते, आज और अगले हफ्ते में खासकर इस बात पे मन करेंगे कैसे इस मन की शांति को हम बना के रख सकते हैं। And we will do well to obey the scriptures because scriptures give a recipe for us to preserve this peace. और हम उस वचन को हम पकड़ के रखेंगे क्योंकि वचन ही है जो हमारे को इस शांति को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। In the Old Testament, in the book of Isaiah, 26 chapter verse 3, अजाया 26वां अध्याय उसकी 3री आयत में हम देखते हैं, the King James version of the Bible is written, और जो किंग जेम्स वर्जन है उसमें ऐसा लिखा है, Isaiah writes about God, you keep in perfect peace him whose mind is stayed upon thee. और वो कहता है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। When the minds are stayed on God and the things of God, we'll have perfect peace, complete peace. और जब हम परमेश्वर पे हमारा मन उस पे धीरज धरे रहता है तो हमारे मन में पूरी शांति होती है। And in the book of Psalms, Psalm 119 verse 165, the psalmist again writes, भजन 165 में वो ऐसा लिखता है भजन लिखने वाला, great peace have they who love your law, nothing will make them stumble. और बड़ी शांति उनके पास रहती है जो परमेश्वर के व्यवस्था को थामे रहता है, उसको कोई चीज ठोकर नहीं पहुंचा सकती। So when our minds are stayed upon the Lord and we love the word of God, what do we have? We have, as some Hindi Bible say, Sampurna Shanti, Mahashanti. Psalm 1, brother 165 ना? Psalm 119 verse 165. अच्छा, भजन 119 उसकी 165वीं आयत में हम इस बात को पढ़ते हैं, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। And some of the South Indian languages like Telugu and all that, it talks about Mahashanti. और तेलुगु और कुछ हिंदी और साउथ भाषा में तो और भी अद्भुत लिखा हुआ है कि वो महाशांति होती है उनको। So this peace has been given to us today. So as long as our minds are upon the things of God and not get distracted from the Lord, we preserve that peace. और ये शांति हमको परमेश्वर ने दी और जब तक हमारा मन हमारे प्रभु पर केंद्रित रहता है हम इस शांति को बनाए रखते हैं। Now the evil one cannot take away our salvation. It's a gift given to us. तो ये जो दुष्ट है ये हमारी शांति को हमसे नहीं चुरा सकता क्योंकि ये परमेश्वर का दान है। He cannot take away salvation. वो हमारे उद्धार को नहीं ले सकता हमसे। But he will try to take away our peace. पर वो हमारी शांति को जरूर चुराना चाहता है। Because he is a thief. क्योंकि वो चोर है। In John 10:10 Jesus says, यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, the thief comes to steal and kill and destroy, but I have come to have life and have it in abundance. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे अपना जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। The thief can only steal what we have. He can't steal what we don't have. चोर तो हमारे पास जो चीज है वही तो चुरा सकता है, जो हमारे पास है ही नहीं उसको कैसे चुराएगा। God has given us peace and joy. He wants to steal that peace. परमेश्वर ने अपनी शांति आनंद हमें दिया है और वो चोर जो है उसको चुराना चाहता है। He knows that as long as a Christian's mind is upon the Lord, he or she is going to preserve that peace. तो वो इस बात को भी जानता है कि जब तक एक विश्वासी ने प्रभु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है वो उस शांति को बनाए रख सकता है। So how does the thief try to steal the peace? By distracting our minds. तो वो शांति को कैसे हमारे से भटकाना चाहता है? हमारे मनों को वो परेशान करता है। This was the concern that the apostle had for the church in Corinth. और यही चिंता थी पौलुस को कोरिन्थ की कलीसिया के लिए। In 2 Corinthians 11 chapter verse 3 we read, और दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 3री आयत में हम पढ़ते हैं। He writes, Paul writes to the church in Corinth, पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को ऐसा लिखता है, I'm afraid that just like Eve was deceived by the serpent's cunning, your mind will be somehow led astray from your sincere and pure devotion to Christ.
परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना कर किए जाएं। And he'll distract us from the keeping our minds on things of God and deceive us to think that something else is there which is good for us and better than our mind of being on the Lord. और वो हमारे ध्यान को भटकाना चाहता है, कुछ ऐसी बात दिखाना चाहता है कि भैया ये चीज जो है तुम्हारे लिए और भी अच्छा है, और हमारे ध्यान को परमेश्वर से हटाना चाहता है। This is how he deceived Eve in the Garden of Eden. और इस तरह से उसने हवा को अदन की वाटिका में उसको बहकाया। God had given Adam and Eve the privilege of eating every fruit of every tree in the Garden of Eden except the one in the middle of the garden. परमेश्वर ने आदम हवा को आदर दिया था कि उस वाटिका के हर पेड़ का फल खा सकते हैं, सिर्फ वो जो मध्य में जो बुराई और भलाई का ज्ञान का पेड़ था उसके फल को मना किया था। Genesis chapter 2 verse 9 says, every tree in the Garden of Eden had fruits which are good for food and pleasing to the eye. और यहोवा ने परमेश्वर उसमें लिखा था कि उस वाटिका में फल खाने में मनोहर थे, फल खाने में अच्छे थे, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष भी भले बुराई का वो भी था उसके बीच में। Only the fruit from the tree of knowledge of good and evil they are not supposed to eat. सिर्फ वाटिका के बीच में जो जीवन का वृक्ष था, जो भले और बुराई को ज्ञान का वृक्ष था, उसको मना किया था खाने के लिए। And the evil one distracted Eve's mind from obeying God's word to looking at this tree, which is thought is good for food, pleasing to the eye, and useful for getting knowledge. और उसने उसके ध्यान को भटका दिया कि वो देखने में भला है और खाने में भी अच्छा लग रहा है, और उसको उसका ध्यान जो था उसने परमेश्वर की व्यवस्था बात से हटा दिया। He succeeded in distracting her from every other tree in the Garden of Eden and focused on this one tree. और उसने उसके ध्यान को उस वाटिका के हर एक पेड़ से हटा के सिर्फ इस पेड़ पे लगा दिया। And even make her think about the prospect of eating from that tree and not dying. और उसको ये भी बता दिया उसको ध्यान में कि अगर तू इसका फल खा लेगी तो मरेगी भी नहीं। God had told them, if you eat from this tree, you will die. परमेश्वर ने तो उनको बता दिया था कि अगर इस पेड़ के वृक्ष के फल को खाओगे तो मर जाओगे। Question of eating and not dying never arose to Adam and Eve till the devil spoke. और ये प्रश्न कि वो मरेंगे या जिएंगे ये उनके मन में आया ही नहीं था जब तक कि शैतान ने उनसे बातें नहीं करी। The devil said, you will not surely die. Suddenly a new idea has come. Maybe I will not die. और वो जब शैतान ने उनको बोला तो एक नया विचार उनके मन में हो सकता है कि मैं ना मरूं। And her mind was distracted from understanding what God said to what could happen if you disobey God. और उसने उसके ध्यान को परमेश्वर की बात से हटा दिया और इस बात पे लगा दिया कि क्या होगा अगर मैं इस आज्ञा को तोड़ दूंगा तो। It was both distraction and deception. और वो ध्यान को भटकाना भी था और भ्रम भी करना था। And let's go back to 2 Corinthians 11:3. 2 Corinthians 11:3. दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी तीसरी आयत में फिर से जाएंगे। He said, just like you deceived by serpent's cunning, your mind will led astray, distracted. Distraction and deception together caused her to sin, and it can happen to us today also. और वो कहता है कि मैं डरता हूं कि सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया और और तुम्हारे मन उस सिधाई से, इसी तरह से शैतान भी जो है हमारा ध्यान को भी भटकाता है और हमारे को भ्रम में भी डालता है। Now, peace is lost when we sin. और ये शांति को हम खो देते हैं जब हम पाप करते हैं। Sin is not just in actions and words, also in thinking. और ये पाप जो है सिर्फ ये नहीं कि हाथों के काम से या कामों से ही होता है, ये विचारों से भी होता है। So, but distracting us from the commandments of God, teachings of God, to think about something not for us is one way by which devil steals peace. और परमेश्वर की बातों से हटा के रिपीट करना। One way by which devil steals the peace is by distracting us from things that we should be following, things of God. और शैतान जो एक तरीके से भटकाने का जो काम वो ऐसे करता है कि हमारे ध्यान को परमेश्वर ने जो हमें बताया जो काम करने का उससे हमें भटका देता है। To even thinking about what displeases God. और हमारे को एक विचार भी आ जाना, सोचने लगना कि परमेश्वर किस बात से नाराज होता है। In Isaiah chapter 55 verse 7 it's written, let the wicked forsake his ways and the evil man his thoughts. यशायाह 55 उसकी तीसरी आयत में लिखा है कि 7वीं आयत में कि जो दुष्ट है अपनी चाल चलन से, अनर्थकारी अपने सोच विचार को से फिर जाए। So the first way by which the devil steals our peace is to tempt us to think about what is not for us. और सबसे पहली बात जो शैतान करता है कि हमारे को ऐसे विचार हमारे मन में लाता है जो हमारे लिए हैं ही नहीं। If it is not meant for us, we shouldn't even think about it. जब एक चीज हमारे लिए है ही नहीं तो हमारे को उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। Now, when you're not in the Lord,
There's so many things in the world that we cherished and we desired and we craved for, and our mind was following the trend of the sinful thinking. जब हम संसार में थे, परमेश्वर को नहीं जानते, तो हमारा मन भी बहुत सारी बातों को सोचता था और हमारा जो विचार थे वो संसार के हिसाब से थे, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं थे. And after we turned to Christ, according to Romans chapter 13 verse 14, Paul writes, और रोमियो 13वां अध्याय उसकी 14वीं आयत के अनुसार जब हम प्रभु की ओर फिर गए तो पौलुस ऐसे लिखते हैं, "Through the of the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature." वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो. So by thinking about it, having a forethought of it, we lose the peace of mind, peace of between us and God in the mind. तो ऐसी चीज जो हमारी है ही नहीं, उसके बारे में हम सोचने लगे, विचार करने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, और फिर हम अपनी शांति को खो देते हैं. Now when you think about something not for us, the heart will tell us it's wrong. और अगर वो कोई ऐसी बात है जो हमारे लिए है ही नहीं और उसके बारे में हम सोचते हैं, तो हमारा हृदय हमें बता देता है कि ये गलत है. Mind varies from God to various things of this world. Heart tells you that it's wrong, and then there's conflict between heart and mind. और हृदय और मन में एक द्वंद चलता रहता है कि वो बोलता है ये चीज तेरे लिए ठीक है, पर हृदय कहता है कि ये नहीं. मन कहता है ये तेरे लिए ठीक है, पर हृदय कहता है ये तेरे लिए ठीक नहीं है. So very simply put, we should not even begin to think about something that God doesn't want us to have. तो सीधी सी बात यह है कि हमारे को ऐसी बात जो परमेश्वर चाहता ही नहीं कि हम हमारे पास हो या हम उसको लिए लगे, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. And the evil one tempts us to think about something that God doesn't want us to have. In that process, we lose that peace. और दुष्ट जो है वो यही चाहता है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए चीज नहीं रखी उसके बारे में हम सोचें और इस प्रक्रिया में अपनी शांति को खो दें. And that's the first method the devil uses to steal our peace. और ये एक तरीका है, पहला तरीका जिससे दुष्ट हमारी शांति को हमसे चुराता है. And the solution for that is Galatians 5:16. और उसका इलाज भी है गलातियों 5 उसकी 16वीं आयत में. Paul writes, "So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature." पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे. So the devil cannot succeed in tempting us to think about something wrong. He'll try another method. अगर और दुष्ट जब देखता है कि ये चीज से इसको प्रभाव नहीं पड़ा तो वो दूसरा रास्ता अपनाता है. That is, he'll try to point us to other people who are ungodly people who seem to have all the good things in life. और वो हमारा ध्यान को उन लोगों पे, संसार के दुष्ट लोगों के ऊपर लगाता है जो दुष्ट होने के बावजूद भी संसार की सारी चीजें उनके पास होती हैं. Here we are walking with God in obedience to his teachings in thought, word and deed. यहाँ हम परमेश्वर की इच्छा में, उसके विचारों के अनुसार, उसके अपने कामों में, सोच विचार में उसके अनुसार चल रहे हैं. There are other people around us who are not walking with God, wicked people, but they seem to have all the good things in life. और हम दूसरी तरफ देखते हैं संसार के लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, पर उनके पास संसार की सारी भली वस्तु उनके पास दिखाई देती हैं. And the evil one will make us think about what others have, which we don't have. In that process, we lose peace. और दुष्ट जो है हमारे ध्यान को इन लोगों की ओर लगाता है और इस प्रक्रिया में अपनी शांति को हम खो देते हैं. A classic example is found in Psalm 73. और बड़ा अच्छा उदाहरण भजन 73 में हम देखते हैं. The Psalm of Asaph. और ये आसाफ का भजन है. From verse 1 he writes, और पहली आयत से वो लिखता है, "Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart." सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है. But as for me, my feet are almost slipped. मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे. I nearly lost my foothold. मेरे डग फिसलने ही पर थे. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. क्योंकि जब मैं दुष्टों की कुशल देखता था, तब उनकी घमंडियों के विषय में मेरे ढा करता था. He's envying arrogant people. Can you imagine? वो ऐसे दुष्ट लोगों के लिए जो घमंडी हैं उनके लिए ढा कर रहा है. When he saw the prosperity of the wicked people around him. जब दुष्ट लोगों के कुशल को देखता है चारों तरफ, उसके अंदर मन में ढा आ जाती है. And he goes on to give a lecture to God. और परमेश्वर को आगे चल के बड़ा एक लेक्चर देना शुरू कर देता है. Their bodies are healthy and strong. वो कहता है उनका शरीर बड़े हष्ट-पुष्ट है. They are free from ills common to man. और उनको जो संसार के लोगों को बीमारियां विपत्ति आती है वो नहीं पड़ती उन पे. They scoff, they mock. वो अहंकार करते हैं और उपद्रव करते हैं. They're always carefree, they increase in wealth. और बड़े मस्ती से रहते हैं और उनकी धन संपत्ति बढ़ती जाती है. Pride is their necklace. और घमंड उनका गहना है. In verse 12 he says, they're always carefree, they increase in wealth. और 12वीं आयत में कहता है कि वो सदा सुभागी है रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं. Then he goes into self-pity mode from verse 13.
और 13वीं आयत से आगे वो अपने पे और दया करने वाली बात करता है In vain have I kept my heart pure. कि मैंने व्यर्थ में ही अपने हृदय को शुद्ध रखा In vain have I washed my hands in innocence. और अपने हाथों को निर्दोषता से बेकार में ही धोया All day long I've been plagued, I've been punished every morning. क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ, प्रति भोर मेरी की ताड़ना मुझ पर होती आई है। Then from verse 16 he writes, और 16वीं आयत से वो कहता है, when I tried to understand all this, जब मैं सोचने लगा इन सब बातों के बारे में, it was oppressive to me. तो ये मुझे मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। Till I entered the sanctuary of God and understood their final destiny. जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों का परिणाम को नहीं देखा। You try to understand why he is obeying God and one mistake he makes, he gets punished. These guys are enjoying life, wicked people. वो इस बात को समझता है कि कैसे वो एक गलती करता है उसको सजा मिल जाती है और ये लोग जो इतनी दुष्टता करते हैं और मजे ले रहे हैं। He was oppressed in the mind. He oppresses the devil, oppresses the mind. He afflicts the body, and he also people are not in the Lord. He can possess also. और शैतान जो है उनके मन को परेशान करता है, उनका मन को भटकाता है, उनके शरीर को भी शरीर को परेशान करता है और बल्कि उनको दुष्ट तो उनको ऊपर हावी भी हो जाता है, उनको अपना घर बना लेता है। He tries to oppress the mind of believers. और विश्वासियों के मन को वो परेशान करता है। Don't let him do it. उसको ऐसा ना करने दें। And then from verse 21, the psalmist writes, और 21वीं आयत से आगे भजन लिखने वाला लिखता है, when my heart was grieved, my spirit embittered, मेरे मन को चिड़चिड़ा तो हो गया था, मेरा अंतकरण छिद गया था। I was senseless and ignorant. और मैं जो था पशु सरीखा हो गया था, कुछ नहीं समझता था। As the brute beast before you. और एक पशु के समान बन गया था। Yet I am always with you. तो भी मैं निरंतर तेरे संगी था। You guide me, you hold me by my right hand. तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ लिया रखा था। You guide me with your counsel. और मुझे सम्मति देता था। And after you'll take me to glory. और मेरे को अब मेरी अगुवाई करेगा और मेरी महिमा करके मुझे अपने पास रखेगा। Whom do I have in heaven except you, and the earth has nothing I desire beside you. स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। When did he understand all this? When he entered the sanctuary of God. और ये सब बातें कब समझा, जब वो परमेश्वर के भवन में उसने प्रवेश किया। Sanctuary of God means presence of God. परमेश्वर का भवन यानी परमेश्वर की उपस्थिति। He tried to understand all this outside the sanctuary. और ये सब बातों को समझने का प्रयास कर रहा था परमेश्वर के उसके निवास स्थान से बाहर रहकर। In the light of God's presence, he understood that always God is holding him by his right hand. परमेश्वर के वचन की उपस्थिति में आके उसको समझ में आया कि परमेश्वर उसको हर समय दाहिने हाथ से थामे रहेगा। When Christians look at wicked people flourishing, they get frustrated, they get upset with God, angry with God also. और जब दुष्ट लोगों को बहुत से मसीह लोग देखते हैं कि वो तरक्की पा रहे हैं, तो बड़े निराश हो जाते हैं और परमेश्वर से भी गुस्सा हो जाते हैं। Then again we find the prophet Jeremiah himself questioning God about wicked people flourishing. और यिर्मयाह भी परमेश्वर से प्रश्न पूछता है जब वो देखता है दुष्ट लोग तरक्की कर रहे हैं। Jeremiah chapter 12 from verse 1, he writes, यिर्मयाह 12वां अध्याय की पहली आयत में आगे वो ऐसा लिखते हैं, Lord, you're always righteous when I bring a case before you. हे यहोवा, तू से मुकदमा लड़ूं, तू भी धर्मी है। Yet I will speak to you about your justice. और फिर भी मैं जो है तेरे न्याय के बारे में बात करूंगा। Why does the way of the wicked prosper? दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? Why do the faithless live at ease? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? You planted them, they've taken root, they grow and bear fruit. तू उनको बोता है, वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते हैं और फलते भी हैं। Your name is upon the lips, but the hearts are far from you. तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मन तुझसे दूर है। Then he advises God. और फिर वो परमेश्वर को सलाह देना शुरू करता है। Take them and butcher them, slaughter them, give the children over to famine. और कि तू उनको ले जा, उनको भेड़ बकरियों की तरह घात कर, उनको नाश कर दे। A man is a prophet of God. He's speaking his own mind to God. He's listening to God and speaking to people. He did that also. ये परमेश्वर का नबी है और ये परमेश्वर से ऐसी बात कह रहा है। Look at the way God answers Jeremiah. और देखिए परमेश्वर किस तरीके से इसको उत्तर देता है यिर्मयाह। Jeremiah's question was about why wicked people flourish. Where's your justice? I want to talk to you about his justice. और परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर से वाद कर रहा है कि परमेश्वर तेरा न्याय क्या है, मैं तेरे न्याय की बात करना चाहता हूँ। The sense of justice we have is a God-given sense of justice. और ये जो न्याय है, ये परमेश्वर की ओर से एक समझ हमारे को दी गई है। And so often Christians use the sense of justice God gave them to question the God of justice who is the giver of justice.
और वो परमेश्वर जो न्याय का परमेश्वर है, जो देने वाला है न्याय को, उसी से पूछने लगते हैं कि तेरा न्याय कहाँ है। And in verse 5, God gives the answer to Jeremiah, not about wicked people flourishing, but about Jeremiah. और परमेश्वर जो है 5वीं आयत में यिर्मयाह को उत्तर देते हैं, ये नहीं कि क्यों वो सफल हो रहे हैं, पर यिर्मयाह को बताते हैं। You have raced with men on foot and they worn you out. How can you compete with horses? तू तो प्यादों के संग दौड़कर थक गया, तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा? If you stumble in safe country, how can you manage the thickest by the river Jordan? यदि तू शांति में के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? Simply put, if such a small problem is going to affect you because wicked people flourishing, how are you going to face stiffer tests in life? तो सीधी सी बात ये परमेश्वर पूछ रहा है कि ये छोटी सी समस्या है, जिस दुष्ट लोगों को तरक्की देख के तू परेशान हो रहा है, तो आगे जीवन में बड़ी बड़ी समस्या आएंगी, उनका कैसे सामना करेगा? I am your God, I am your heavenly Father, I work in you, look to me. और मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मेरी ओर देख। You are my workmanship. तू मेरे हाथ की बनाई हुई चीज है। Don't look at people around you. संसार के आस पड़ोस के लोगों को मत देख। So when you look at people around you, we lose that peace. That's the second method devil uses to make us think about what others have, but we don't have that. और शैतान जो है दूसरे लोगों के पास जो चीज है उसकी ओर हमारा ध्यान लगा के हमारी शांति जो हमारे पास है उसको चुराने का प्रयास करता है। Material blessings, prosperity of this world people have, we don't seem to have that, and then we start comparing. और वो जो शांति, संसार की शांति जो हमारे पास, जो चीजें जो हमारे संसार की हमारे पास नहीं है, दूसरों के पास है, उसके ऊपर हमारा ध्यान लगा के हमारे को भटकाता है। In that process we lose the peace. और उस प्रक्रिया में हम अपनी शांति को खो देते हैं। What's the solution? पर इसका इलाज क्या है? 1 Timothy chapter 6 verse 6. पहला तिमोथी 6 अध्याय उसकी 6 आयत। Godliness with contentment is great gain. और संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। When a godly be content, जब हम संतुष्ट होते हैं और परमेश्वर की उसमें चलते हैं तो हमारे पास बड़ी संतुष्टि होती है। there's great gain in that. और उसमें बड़ी कमाई भी होती है। The second method devil uses is to make us think about the material blessings other people seem to have, which we believers who walk with the Lord don't seem to have. और दूसरा प्रक्रिया जो शैतान करता है वो संसार के लोगों के पास जो धन संपत्ति है उसकी तरफ हमारा ध्यान लगाता है जो हमारे पास नहीं है। The third is, और जो तीसरी बात करता है शैतान, he makes us think about what we think we might have, we won't have. और वो हमारे को जो हमारे पास हो सकती है पर हमारे पास है नहीं उसके ऊपर लगाता है। What are those? ऐसी बातें कौन सी हैं? Imaginary problems about the future. आगे आने वाली समस्याओं जो भविष्य में होने वाली हैं उसके बारे में चिंता करना। This might happen to you, that might happen to you. We think about what could happen about tomorrow and we lose the peace today and we have anxiety. कि ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा, हमारे को ऐसी समस्या आ जाएगी, उसकी हम चिंता करने लगते हैं और अपनी शांति को खो देते हैं। Peace and anxiety don't go together. शांति और चिंता ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती। Faith and anxiety don't go together. विश्वास और चिंता एक साथ नहीं चल सकती। And most things we worry about never happen. और ये ज्यादातर जो बातें हैं जिसकी हम चिंता करते हैं वो होती ही नहीं है। But evil one will put anxious thoughts in our minds. और ये जो दुष्ट है ऐसे विचार हमारे मन में लेके आता है। If you can't try to tempt us in our thinking, to try to tempt us in looking at other people, comparing and feeling sorry for yourself. और वो हमारे को जब हमारी चिंता को हमारे को नहीं भरमा सकता तो वो हमारे को ध्यान दूसरे लोगों के ऊपर लगा देता है और हम उनको देख के उनकी लालसा करते हैं और अपनी शांति को खो देते हैं। If we can't succeed in that, he will make us think about an imaginary problem tomorrow, and then thinking about that, we lose peace today. और जब वो भी इसमें भी सफल नहीं होता तो वो क्या करता है, हमारे को काल्पनिक चिंताओं में डाल देता है, हम उनकी चिंता करने लगते हैं और अपनी शांति को खो देते हैं। And very frankly, many things we think about the future, we worry about that, it never happens. So what's the point thinking? और बहुत सारी विचार जो चिंता हमारे मन में आती है भविष्य को लेके, उनमें से ज्यादातर तो होती ही नहीं है, तो बेकार में हम क्यों चिंता करते हैं? Worrying about possible problems of the future, in that process we lose the peace today. और जो हमारे जीवन में हो सकने वाली आगे चिंताएं जो परेशानियां आ सकती हैं उसकी चिंता करके हम अभी की शांति को खो देते हैं। Please remember, peace and anxiety don't go together at all. You can't have both at the same time. तो आप ये ध्यान रखें कि शांति और चिंता ये दोनों एक साथ लेके हम नहीं चल सकते। In Philippians chapter 4, 6-8 we read, फिलिपियों 4 अध्याय 6 से 8 में हम पढ़ते हैं, don't be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन
प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। And the peace of God which transcends all understanding will keep your hearts and minds on Christ Jesus. तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 8 verse says, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, admirable, excellent, praiseworthy, think about such things. निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। So don't be anxious, but rather commit it to God, and peace of Christ will keep our hearts and minds on Christ Jesus. तो हमें चिंता नहीं करनी और हमारे को जो चीजें परमेश्वर ने दी हैं उसमें परमेश्वर की शांति आनंद में हमें अपने आप को बना के रखना है। We live each day for the Lord and hold on to God's promise that He has the best plans for us, and therefore do not worry. और हम परमेश्वर ने जो हमारे रखा है वो हमारी सबसे अच्छी योजना है और वो हमें आगे आने वालों की चिंता नहीं, क्योंकि वो हमारा भविष्य जानता है। I'll give one example from the Bible about how things we imagine are going to happen, wrong things, bad things will not happen. और बाइबल से एक उदाहरण हम देखेंगे कि हम कैसे एक बुरी बात की चिंता करें कि ऐसा हो सकता है, पर वो नहीं होता। It happened to Israel himself, Jacob himself. और ये याकूब इजराइल के साथ खुद ऐसा हुआ। Jacob's name became Israel, we know that. याकूब का नाम ही बाद में इजराइल रखा गया था, ये हम जानते हैं। And when he was in his mother's place, और जब अपने माँ के घर में था, Isaac was there also. इजाक भी वहीं था। And the mother tells Jacob, और माँ जो है वो याकूब को ऐसा बोलती है। In the book of Genesis, chapter 37, 41 to 44. उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय 41 से 44वें आयत में हम पढ़ते हैं। Your brother Esau was contemplating trying to kill you after your dad's days are over. कि तेरा भाई जो है जब तेरा पिताजी चला जाएगा उनके दिनों के बाद तेरा नुकसान करने की सोच रहा है। You go away from here. इसलिए तू यहाँ से चला जा। Go to my brother Laban's and stay there. और तू मेरे भाई लाबान के यहाँ चला जा और वहीं रह। When your brother's anger subsides, I will send for you and you come back. और जब तेरे भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मैं तुझे बुलवा लूंगी और तब तू आ जाना। That's why Jacob goes to his uncle Laban's place. और इसलिए याकूब जो है अपने मामा या लाबान के घर चला जाता है। Actually, Isaac was still alive. और वास्तव में तो उस समय इजाक जिंदा था। Rebecca heard that Esau was planning to kill Jacob after the dad dies. और रेबेका उसको बताती है कि तेरा भाई ईसाऊ तुझे मारने की घात करने की योजना बना रहा है कि जैसे ही तेरा पिताजी मरेगा तेरे को मार देगा। So Rebecca sends away Jacob to her brother's place. और इसलिए रेबेका उसको याकूब को अपनी मामा के घर में भेज देती है। And there he spends many years there. He is there 20 years there actually. और वहां पे 20 साल वहां पे याकूब बिताता है। He acquires wives. और वहां उसको 2 पत्नियां मिलती हैं, पत्नियां मिलती हैं 4। Acquires children and he has a lot of possessions, men servants, maid servants, cattle, goats, donkeys, so many things he acquires. और उसको पत्नियां मिलती हैं, बच्चे मिलते हैं, धन संपत्ति, बैल बकरे घोड़े सब बहुत कुछ मिल जाता है। And no news from mother that Esau's anger has subsided. और माँ से कोई खबर नहीं आ रही कि भाई तेरे भाई का लाबान या ईसाऊ का गुस्सा ठंडा हो गया है। But no word from mother, but God speaks. माँ से तो कोई खबर नहीं आई, पर परमेश्वर बात करता है। Genesis 31st chapter verse 3. उत्पत्ति पहला 31वां अध्याय उसकी 3री आयत। The Lord tell Jacob, go back to the land of your fathers and relatives, I will be with you. तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपने जन्म भूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। One instruction and one promise. एक हिदायत है और एक वायदा भी है। Instruction is go back. हिदायत तो यह है कि तू वापस लौट जा। Promise is I will be with you. और उसको एक वायदा जो है वो कि मैं तेरे संग रहूंगा। That's all, nothing more. बस इतना ही, और कुछ बात नहीं कही। Nothing about Esau, nothing about the situation at home, nothing. Just you go, I am with you. घर में क्या हाल है, ईसाऊ का गुस्से के बारे में क्या हाल है, कुछ नहीं बताया, बस बोला तू जा, मैं तेरे साथ हूं। And no news from mummy also that Esau anger has subsided. और माँ से भी कोई खबर नहीं आई है कि भाई तेरे भाई ईसाऊ का गुस्सा ठंडा हो गया। 20 years is waiting for news from home to come back. Esau's anger has subsided. No news, and now also no news about Esau. और 20 साल इंतजार कर रहा है कि घर से कोई खबर आए कि मेरे भाई का गुस्सा ठंडा हो गया, और अभी तक कोई खबर नहीं आई। Jacob goes back. याकूब वापस चला जाता है। While going, being human, he is worrying. और जब वो क्योंकि मनुष्य है, वापस जाते समय उसको बड़ी चिंता हो रही है।
How would Esau receive me? कि क्या होगा, ईसाऊ क्या मुझे स्वीकार करेगा? Is he still angry? क्या अभी भी मुझसे गुस्सा होगा? Will he kill me? क्या मुझे मार देगा? Esau was a man of the country. He was a hunter, whereas Jacob was a home bird. और याकूब, ईसाऊ तो था वो खेतों का शिकारी आदमी था, जंगल में रहने वाला व्यक्ति था, और याकूब तो घर घर में घुसे रहने वाला व्यक्ति था. And while going back, he's very anxious about how he'll be received by his brother. और जब वो जा रहा है उसको बड़ी चिंता हो रही है कि मेरा भाई मुझे कैसे स्वीकार करेगा. So what does he do? वो क्या करता है? He sends messengers to his brother to tell him, to find out about what's happening. He sends messengers to his brother to tell him, I've got men servants, maid servants, cattle, donkeys, and all that. और इसलिए वो क्या करता है, संदेश वाहकों को भेजता अपने भाई के पास कि मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, जानवर हैं, सब कुछ है. And the messengers come back, they tell Jacob, Esau is coming and 400 people are with him. और जो संदेश वाहक हैं वो आके बताते हैं कि ईसाऊ तेरे से मिलने के लिए आ रहा है और 400 लोगों के साथ लेके आ रहा है अपने. And it says in the book of Genesis, 32nd chapter, verse 6 and 7, the story is there. और उत्पत्ति 32वां अध्याय 6ठी और 7वीं आयत में हम इस कहानी को पढ़ते हैं. When the message comes that 400 people are coming with Esau, और जब उसको खबर मिलती है कि 400 पुरुष वो अपने संग लेके आ रहा है तुझसे मिलने के लिए, Jacob, in great fear and distress, he divides all his possessions, making plans how to meet Esau. Great fear and distress. याकूब बहुत डर जाता है, संकट में पड़ जाता है, और वो अपने भेड़ बकरियों को सब जो है अलग अलग दलों में बांटना शुरू कर देता है. Mind you, he's obeying God. God told him, go back, he's going. God is on his side. But he's looking at the circumstances. और वो परमेश्वर की आज्ञा मान के ही जा रहा है. परमेश्वर ने जो बोला जाने के लिए वो जा रहा है, और उसकी परिस्थितियों को देखिए. Then does one good thing, he prays. और एक अच्छी काम करता है कि वो प्रार्थना करता है. He's crying out to God for how to face Esau. तो परमेश्वर से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि कैसे अपने भाई का सामना करे. And after praying, he's making his plans. और वो अपनी योजना, परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद अपनी योजनाओं को बनाता है. This time he sends messengers to go and tell Esau, I got all this, men servants, maid servants, cattle, donkey, sheep, I give some gift to you also. और वो उसको संदेश डाल के भेजता है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत धन संपत्ति सब कुछ दिया है, और मैं जो है ये इसका हिस्सा कुछ तेरे को भी देता हूँ. Earlier it was a hint, now it's an open offer. पहले तो एक सिर्फ उसको एक सलाह सी दे रहा था, पर अब तो एक पूरा खुले में उसको एक शर्त दे रहा है. Then divides the whole group into four batches. और पूरे धन संपत्ति को जितने लोग थे उनको 4 समूह में बांट देता है. Right in front is one of the maid servants with her children. और सबसे आगे जो उसकी दासी और रखेलियों के बच्चे थे उनको रखता है. Behind that group is second maid servant and her children. और दूसरी रखेली थी उसके बच्चों को उसको रखता है. Third group is Leah and her children. और तीसरे समूह में लिया और उसके बच्चों को रखता है. And right at the back is Rachel and her children. और सबसे पीछे जो है राहेल और उसके बच्चों को रखता है. And one good thing, Jacob goes in the front. और सबसे अच्छी बात जो वो करता है, वो सबसे आगे खुद चलता है. But he wants to keep Rachel at the back, his favorite wife, last wife, favorite. और उसकी सबसे प्रिय पत्नी राहेल जो थी उसको सबसे पीछे रखता है. But he goes in the front. Praise God for that. और परमेश्वर की स्तुति हो कि वो खुद सबसे आगे जाता है. That's the plan he has made. After praying, he's make his own plans. और ये एक बड़ी प्रार्थना करता है, उसके बाद ही योजना बनाता है. God is still silent. तो परमेश्वर अभी भी चुप रहता है. He's watching Jacob. वो याकूब को देख रहा है. My child is going back. He's obeying me. और वो मेरा बच्चे ने मेरी बात सुनी है, मेरी आज्ञा मानी है, वापस जा रहा है. And finally, when Jacob sees Esau, और जब ईसाऊ याकूब को देखता है, Esau comes running, hugs him and kisses him. वो दौड़ के आता है, उसको गले से लगाता है, उसको बहुत चूमता है. In the book of Genesis 33rd chapter verse 4, it says Esau comes running, hugs Jacob and kisses him. और उत्पत्ति 33वां अध्याय 4ठी आयत में लिखा है, तब ईसाऊ उससे भेंट करने को दौड़ा, उसको हृदय से लगा लिया और गले से लिपट कर चूमा, फिर दोनों खूब रोए. All that anxiety was a big waste of time. और ये जितनी भी चिंता अभी तक याकूब कर रहा था, सब बेकार का समय बर्बाद करने वाली बात हो गई. It's too much for Jacob. And after seeing Esau, Jacob says in verse 10 of Genesis 33rd chapter, और जब याकूब ईसाऊ को देख लेता है तो उत्पत्ति 33वें अध्याय 10वीं आयत में वो कहता है, looking at you is like looking at the face of God. क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाके मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है. Such an anticlimax. You look like God to me. I was so scared of him. इतना डरा हुआ था और इतनी चिंता करता, और उसका अंत कितना अजीब सा होता है. वो कहता है कि वो उसको बड़ा कहता है मैंने परमेश्वर का दर्शन पा लिया. God had changed Esau's heart.
परमेश्वर ने ईसाऊ के हृदय को बदल दिया था, God did not tell Jacob that. पर परमेश्वर ने याकूब को नहीं बताई ये बात। In the book of Proverbs, chapter 16, verse 7, it's written, और नीति वचन 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, when a man's ways are pleasing to God, he makes even his enemies live at peace with him. Look at the amazing example, practical example of what happened to Jacob and Esau. और इसमें लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल करा देता है। और इसका कितना हम देख रहे हैं कि उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे ईसाऊ का और याकूब का मेल हो जाता है। Jacob pleased God by going back even without information from the mother that Esau's anger was subsided. याकूब ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, अपनी माँ की बिना कोई संदेश आए कि उसका ईसाऊ का गुस्सा ठंडा हो गया, फिर भी परमेश्वर की आज्ञा मानता है। He pleased God by going. और परमेश्वर को प्रसन्न करता है वापस लौट के। God changed Esau's heart. परमेश्वर ने ईसाऊ के हृदय को बदल दिया। And what an ending it came to. और कितना अद्भुत इसका अंत होता है। No, I don't think Jacob knew Proverbs 16:7. और याकूब को शायद पता भी नहीं होगा या पता होगा नीति वचन 16:7। Written much after Jacob's life. क्योंकि ये तो उसके याकूब के बहुत सालों के बाद लिखी गई पुस्तक है। But we know Proverbs 16:7. पर हम तो जानते हैं याकूब उत्पत्ति नीति वचन 16:7 को हम जानते हैं। And we still worry about people who are going to attack us. और फिर भी हम अपने शत्रु की चिंता करते हैं कि हम पे आक्रमण करेंगे। How many promises God has given us? परमेश्वर ने हमसे कितने वायदे हमें दिए हैं। He said, do not worry about your life. परमेश्वर कहता है अपने जीवन की चिंता ना करो। We worry, nothing happens in the end. और हम इतनी चिंता करते हैं अंत में कुछ भी नहीं निकलता। By worrying, we are actually sinning against ourselves. और हम चिंता करके वास्तव में अपने विरोध में पाप करते हैं। Romans chapter 15 verse 4 says, Romans 15:4. रोमियो 15:4 में हम पढ़ते हैं, For everything in the past was written to teach us. जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। So that through endurance and the encouragement of the scriptures we will have a hope. कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। How the story encourages us for us to know you simply have to walk in the ways of God and leave our enemies in the hands of God for him to change them. और कितना अद्भुत इस कहानी से हम सीखते हैं कि कैसे अपने वैरियों को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और वो उसकी चिंता अपने आप करेगा। Please don't think worrying is normal Christian life. ये ना सोचे कि चिंता करना तो एक स्वाभाविक सा है मसीह जीवन में। It's normal life for people who do not know God. ये उन लोगों के लिए है, साधारण बात है जो परमेश्वर को नहीं जानते। For us it's abnormal as Christians. हम जो मसीह लोग हैं, हमारे लिए ये साधारण बात नहीं है। We are strangers in the world. We don't live like the rest of the people of this world. हम तो संसार में परदेशी हैं, हम संसार के और लोगों की तरह हम नहीं रहते। But the evil one will steal the peace that God has given us by making us think about some problem we may have which we won't have at all. और दुष्ट जो है हमारे को ऐसी चिंता के ऊपर लगाता है हमारा ध्यान जो हो आगे की हम सोचते हैं होगी पर वो होती ही नहीं है। So don't listen to the voice of the evil one. Listen to the voice of the Holy Spirit who will remind us of the promise of God and make us rise above every situation. तो हम दुष्ट की बातों के ऊपर ध्यान ना लगाएं, पवित्र आत्मा जी के ऊपर ध्यान लगाएं जो हमारे को सारे आगे आने वाली बातों के बारे में और हमारे लिए सब चीजों को हमारे आगे बताता है। Today I spoke about 3 methods the devil uses to steal our peace in the mind. और हमने आज 3 तरीकों को देखा जिस तरह से शैतान हमारे मन से हमारी शांति को हमसे चुराना चाहता है। One is to make us think about what should not be for us. पहली बात तो उस तरफ उन बातों पे ध्यान लगाता है जो हमारे लिए है ही नहीं। Other is to make us think about what others have which we don't have. और दूसरा हमारा ध्यान ऐसी बातों पे लगा देता है जो दूसरों के पास है पर हमारे पास नहीं है। Third is to make us think about what we feel we might have in the future, problems in the future, we won't have at all. और तीसरा हमारे को ऐसी बातों पे ध्यान लगाता है जो भविष्य में हम सोचते हैं हो जाएंगी या कोई समस्या आगे हो जाएगी पर वास्तव में होती ही नहीं है। Next week we'll talk about more ways by which he steals the peace, and along with know how to handle this evil one, we must be aware of his schemes. Then we'll have a wonderful Christian life and enjoy God's kingdom, which is peace and joy. आगे हम अगले हफ्ते हम इस बात को और आगे अध्ययन करेंगे और देखेंगे कैसे हम इस समस्याओं के बावजूद हम कैसे मसीह जीवन में अपनी शांति और आनंद को बनाए रख सकते हैं। May God bless each one of you as you take his word seriously. परमेश्वर हम सबको आशीष दे जब हम उसके वचन को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। Thank you, brother.